آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے جس کی کہانی سچ میں یعنی کسی ناول یا فلم کے پلاٹ جیسی لگتی ہے۔ ہاں واقعی۔ آج ہمارا موضوع ہے محمد ابن زکریا الرازی، اور اس کہانی اور ان کے عقائد کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم نے عبد الرحمن بداوی کی مشہور کتاب الرازی دی لائف اینڈ فلسفی آف اے ریشنلسٹ فزیشین اس کے اقتباسات کو سامنے رکھا ہے۔ بالکل، یہ کتاب اس عظیم شخصیت کی زندگی کے ایسے حیران کن پہلو سامنے لاتی ہے جو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں دبے رہ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس گفتگو کا بنیادی مقصد ایک ایسی شخصیت کے سفر کو پوری طرح سے کھنگالنا ہے جو اپنی ابتدائی زندگی میں ایک موسیقار تھے، ایک لوٹ بجانے والے۔ ہاں، ایک فنکار جو لیوٹ یا باجا بجانے میں مہارت رکھتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے عظیم ترین عقلیت پسند فلسفی اور معالج کے طور پر ابھرے۔ یہ سفر ایک موسیقار سے دنیا کے بہترین طبیب تک کا سفر واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ اگر الرازی کی ابتدائی زندگی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش 865 عیسوی میں رئی شہر میں ہوئی تھی۔ رئی شہر؟ ہاں۔ ابتدا میں ان کا علم طب یا فلسفے سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، وہ بس ایک موسیقار تھے۔ موسیقی یعنی ایک ایسی دنیا جہاں جذبات، ساز اور آواز کا میل ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ لوٹ بجانے میں کمال رکھتے تھے اور اپنی ابتدائی جوانی اس فنکارانہ ماحول میں گزار رہے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک ہی راستے پر تو نہیں چلتی نا؟ بالکل نہیں۔ ان کی زندگی میں ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ آیا جب انہوں نے موسیقی کو چھوڑ کر کیمیا یعنی الکمی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ کیمیا میں؟ ہاں، وہ مختلف کیمیاوی مواد کے ساتھ تجربات کرنے لگے، اور کیونکہ وہ دھن کے پکے تھے انہوں نے اپنی پوری توجہ ان تجربات پر لگا دی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ کیمیاوی تجربات تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو ایک ایسی سمت دی جس کا انہوں نے شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بداوی کی کتاب کے مطابق جب ان کی عمر تقریباً 30 یا 40 سال کے درمیان تھی۔ 30 یا 40 سال؟ ہاں، اس دوران ایک حادثہ پیدا ہوا۔ کیمیاوی مواد سے اٹھنے والے دھوئیں یا کسی اور مضر اثر کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں شدید بیماری لگ گئی۔ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری جس نے انہیں انتہائی پریشان کر دیا اور وہ اپنا علاج ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے۔ سوچا جائے تو ایک فنکار جو پہلے ساز اور آواز کی دنیا میں تھا، پھر تجربات کی دنیا میں آیا، اور اب اپنی ہی بینائی بچانے کی جدوجہد میں مبتلا ہو گیا۔ اور اسی دردناک حادثے نے انجانے میں نہ صرف الرازی کی زندگی بلکہ تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ واقعی؟ آنکھوں کی اس تکلیف نے انہیں دوڑ دھوپ کرنے اور اس وقت کے معالجوں سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ ان معالجوں سے ملنے اور اپنے علاج کے حوالے سے ان کی ناکامیوں کو دیکھ کر، یعنی ان ڈاکٹروں کی ناکامیاں؟ ہاں بالکل، ان کی ناکامیوں کو دیکھ کر الرازی کے اندر طب کے بارے میں جاننے کی ایسی لگن پیدا ہوئی جس نے انہیں بے چین کر دیا۔ انہوں نے دن رات علم طب پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھنا کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک ذاتی حادثے اور اس سے پیدا ہونے والی مجبوری نے ایک ابتدائی موسیقار کو تاریخ کا عظیم معالج بنا دیا۔ بالکل۔ اپنی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کے مشہور استاد علی ابن ربان الطباری کی شاگردی اختیار کی۔ طباری خود ایک عظیم معالج اور فلسفی تھے۔ اچھا، تو ان کی نگرانی میں انہوں نے سیکھا؟ ہاں، انہی کی نگرانی اور صحبت میں الرازی نے طب کی باریکیاں سمجھیں اور ساتھ ہی فلسفے کی بنیاد بھی مضبوط کی۔ پھر یہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود تو نہیں رہی۔ الرازی نے اس میدان میں ایسی عمدہ مہارت حاصل کی کہ وہ اپنے آبائی شہر رے اور بعد میں اس دور کے سب سے بڑے مرکز بغداد کے ہسپتالوں کے بڑے ہسپتالوں کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی اور ان کا طرز عمل اس دور کی طبی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ صحیح۔ وہ محض نسخے لکھنے والے ڈاکٹر نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین استاد اور انتہائی ہمدرد انسان بھی تھے۔ ماخذ میں ان کے پڑھانے کا انداز بہت ہی انوکھا بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ حلقے والا طریقہ۔ بالکل، جب وہ درس دیتے تو ان کے گرد طلبہ کے مختلف حلقے یعنی سرکلز بن جاتے تھے۔ یہ حلقے دراصل ان کی تعلیمی حکمت عملی کا ایک بہت ہی مؤثر حصہ تھے۔
इसका तरीक़े कार कुछ इस तरह था कि जब कोई शख्स बाहर से कोई तिब्बी सवाल पूछने आता, तो सवाल बाहर वाले हलके में जाता। हाँ, सबसे पहले बाहर वाले हलके के तलबा के पास रखा जाता जो निस्बतन नए होते थे। अगर वो तलबा उस सवाल का जवाब ना दे पाते तो वो सवाल दूसरे और ज्यादा तजर्बेकार तलबा के हलके में अंदर की तरफ मुंतकिल होता। अच्छा। और आखिर में अगर किसी को भी तसल्ली बख्श जवाब ना आता तो वो सवाल मरकज में बैठे खुद अल राजी के पास पहुंचता। वो किताब में उनका हुलिया भी तो थोड़ा अजीब और दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। हाँ बिल्कुल, लिखा है कि उनका सर एक बोरे जैसा बड़ा था और वो हल्के के दरमियान बैठकर आखिरी और कती जवाब देते थे। ये अंदाज न सिर्फ तलबा की खुद एतमादी पढ़ाता था बल्कि उनके इल्म का मुसलसल इम्तिहान भी लेता रहता था। बिल्कुल। और एक उस्ताद होने के अलावा उनकी इंसानियत और हमदर्दी उनकी शख्सियत को मजीद बुलंद करती हैं। वो गरीब और मुस्तहिक मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त करते थे। सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं बल्कि अस्पताल से फारिग होने के बाद उन्हें मुआशी मदद के तौर पर वज़ाइफ भी देते थे। हाँ, स्टाइपेंड्स देते थे ताकि जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक होकर काम पर वापस जाने के काबिल न हो जाए उनकी जिंदगी का गुजार बसर इज्जत के साथ हो सके। ये उनकी मखलूक खुदा के साथ गहराई और हमदर्दी का वाज़ेह सबूत है। लेकिन इस अजीम और हमदर्द मुआलिज की अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा थोड़ा गमगीन है। वाकई मुसलसल लिखने, तजर्बात करने और मुताले की आदत की वजह से और किताब में दर्ज कुछ रिवायतों के मुताबिक फरावा मिकदार में बाकिला यानी बीन्स खाने की अजीब सी वजह से। हाँ, वो बीन्स वाली बात काफ़ी अजीब है। हाँ, तो उनकी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और आखिरकार चली गई, उन्हें मोतिया हो गया। यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि जब उन्हें मोतिया हो गए और वो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गए तो उनके एक पुराने शागिर्द ने उन्हें इलाज की पेशकश की। अच्छा। बताया कि अब ऐसी तहकीक मौजूद है जिससे शायद उनकी बीनाई वापस आ सके, लेकिन अल राजी ने इस इलाज से सख्ती से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उनकी मुंजमद तजुर्बात की गहराई और जिंदगी के आखिरी हिस्से की जहनी कैफियत की अक्कासी करती है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने दुनिया को इतना देख लिया है कि अब मैं इससे उकता चुका हूँ। वाह! ये महज नाराजगी का इजहार नहीं था बल्कि इस बात का इकरार था कि उन्होंने जिंदगी के तमाम रंग, इल्मी उरूज, इंसानी दुख और तकलीफें सब कुछ करीब से देख लिया है और अब उन्हें मजीद किसी मंजर की चाहत नहीं। मैंने दुनिया को इतना देख लिया है कि अब मैं इससे उकता चुका हूँ। ये जुमला उनकी कहानी का एक ऐसा निचोड़ है जो वाकई रुला देने वाला है। सच में। अब अगर इस कहानी को उनके तिब्बी किरदार से उनके फलसफियाना अकायद की तरफ मोड़ा जाए तो वहाँ एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और सख्त अक़लियत पसंद शख्सियत सामने आती है। बिल्कुल। बदावी के इस किताब के मुताबिक अल राजी ने अपने फ़लसफ़े में अक़ल को खुदा का सबसे बेहतरीन और अजीम तरीन तोहफ़ा करार दिया। उनके मुताबिक अक़ल ही इल्म और अमल का वाहिद और हतवी मेयार है। हाँ, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर तहरीर किया कि अक़ल को कभी किसी और चीज़ के ताबे नहीं किया जा सकता। अक़ल ही वो वाहिद कुव्वत है जिसे हर फैसला करने का हक हासिल है। सही। अल राजी की मशहूर किताब अल तिब्बिर रूहानी के आगाज़ में ही अक़ल की अज़मत और उसके मकाम का बहुत वाज़ेह बयान मिलता है। उनका ये पुख्ता यकीन था कि किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी का हर फैसला, चाहे वो दुनियावी हो, तिब्बी हो या रूहानी, सिर्फ अक्ल की रोशनी में करना चाहिए। बिल्कुल। और उनकी इस मुकम्मल अक़लियत पसंदी ने उन्हें कुछ ऐसे अकायद और दावे पेश करने पर आमादा किया जो उस दौर की रिवायतों से बहुत अलग और सख्त मुतनाज़े थे। हाँ, यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हम महज तारीख़ी हवाले से बात कर रहे हैं और बदावी की किताब में जो अल राजी के अकायद बयान हुए हैं हम उन्हें सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। सही। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर इसका तस्करा कर रहे हैं। तो उन्होंने तारीख़ी और फ़लसफ़ियाना तनाजुर में इल्हाम और पैगम्बरी के हवाले से इंतहाई सख्त और मारूफी अकायद रखे जो उस वक्त के माशरे के बिल्कुल बरक्स थे। हाँ, तो इन सब का असल मतलब क्या है? अगर तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो ये मालूम होता है कि अल राजी ने अक़ल को इतना मुक़द्दम रखा कि उन्होंने उस दौर के रिवायती और मजहबी अकायद पर खुलकर सवाल उठाए। अच्छा, उनकी किताबों के मुताबिक अल राजी का मानना था कि खुदा ने तमाम इंसानों को पैदाइशी तौर पर बराबर जहानत और अक्ल से नवाजा है। यानी इंसान फितरती तौर पर एक दूसरे से बढ़तर नहीं होते। बिल्कुल।
उनके मुताबिक जो फ़र्क इंसानों की सोच और इल्मी मर्तबे में पैदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम, मुताले और माहौल की वजह से आता है। ये उनके फ़लसफ़े का बहुत बुनियादी नुक्ता है। उनके मुताबिक चूंकि सब इंसान अक्ल की दस्तयाबी में बराबर हैं, इसलिए किसी मखसूस तबके या अफराद को रूहानी या इल्मी रहनुमाई के लिए मुंतखब या बरतर मानना उनके नज़दीक मंतकी नहीं था। सही। उनका दावा था कि इल्मी हक़ाइक़ किसी बैरूनी इल्हाम के बगैर महज अक्ल और तजर्बे के ज़रिए तय किए जा सकते हैं। और इसी सोच के तहत उन्होंने इल्म तिब, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और मंतिक की किताबों को मजहबी किताबों पर तरजीह दी। हाँ, उनका कहना था कि इन इल्मी किताबों में जो सच्चाई लिखी गई है वो अक्ल और तजर्बे की कसौटी पर पूरी उतरती है, समझने में आसान है और इंसानियत की फलाह और बेहतरी के लिए अमली तौर पर ज्यादा फायदेमंद है। आज के तेजी से बदलते हुए दौर में जहां मालूमात और अफवाहों का एक सैलाब हर वक्त मौजूद रहता है, अल राज़ी की ये सोच कि अक्ल को हर चीज पर मुकद्दम रखना चाहिए मंतिकी सोच की अहमियत को और भी ज्यादा उजागर करती है। वाकई उनकी अक़लियत पसंदी सिर्फ इब्तिदाई सवालात तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने उन्हें कायनात के वजूद, उसकी इब्तिदा और इसकी बनावट के बारे में एक बहुत ही गहरा, तसव्वुराती और मुनफरिद नजरिया पेश करने पर आमादा किया, जिसे 5 अज़ली हकीकतों का नजरिया कहा जाता है। हाँ, द 5 इटर्नल्स, ये उनके फलसफे की एक बहुत ऊंची इमारत है। ये 5 अज़ली हकीकतों का तसव्वुर अल राज़ी के फ़लसफ़े का सबसे पेचीदा और शानदार हिस्सा है। उनके नज़दीक ये कायनात 5 ऐसी अज़ली चीज़ों पर मुश्तमिल है जो हमेशा से मौजूद हैं और हमेशा रहेंगी। इनकी कोई इब्तिदा नहीं? बिल्कुल। ये 5 अज़ली हकीकतें हैं: खुदा, रूह, मादा यानी मैटर, मकान यानी स्पेस और ज़मान यानी टाइम। खुदा, रूह, मादा, मकान और ज़मान। सही। उन्होंने इन 5 की खासियत बयान करते हुए वाज़े किया कि इनमें से खुदा और रूह जिंदा और फाल कुव्वतें हैं, और मादा गैर जिंदा है और असर कबूल करने वाला ठोस वजूद है, जबकि मकान और ज़मान दोनों हालात में शामिल नहीं, वो बस ऐसी जगह और वक्त है जहां बाकी चीज़ें वजूद रखती हैं। अच्छा, इन 5 असली हकीकतों के बारे में अल राज़ी ने महज खुश्क फलसफियाना दलील नहीं दी, बल्कि इसे एक ऐसी कहानी की तरह बयान किया है जो सुनने में वाकई किसी कदीम दास्तान या मिथोलॉजी जैसी लगती है। हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। बदावी की किताब के नोट्स के मुताबिक इस कहानी का आगाज़ कुछ यूं होता है कि खुदा मुकम्मल अक्ल है और उसका इल्म कामिल और बेऐब है। दूसरी तरफ रूह जिंदा तो थी मगर वो जाहिल थी, यानी हक़ाइक़ से बेखबर थी। सही। इस तमसीली कहानी में होता यह है कि इस बेखबर रूह को मादा से इश्क हो जाता है। रूह इस मादे के साथ मिलकर जिस्मानी मज़े और दुनियावी लज्जतों का तजुर्बा करना चाहती थी, लेकिन मादा अपनी फितरत में बागी और बेजान था और वो खुद को आसानी से कबूल करने या किसी शक्ल में ढलने नहीं दे रहा था। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये कहानी दरअसल इस दुनिया के वजूद में आने और इसमें मौजूद तकलीफ का बुनियादी सबब बयान करती है। बिल्कुल। जब खुदा ने देखा कि रूह असरे इश्क में मादा के पीछे पड़ गई है और उसे हासिल करने के लिए बेताब है, तो खुदा ने रूह की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये दुनिया और इसमें मौजूद ठोस शक्लें बनाई, ताकि रूह इन शक्लों में दाखिल होकर जिस्मानी मज़े ले सके। हाँ, लेकिन खुदा जो कामिल हिकमत और मुकम्मल अक्ल वाला है, जानता था कि रूह और मादा का ये मिलाप और जिस्मानी कैद दुख, बीमारी और तकलीफ का बायस बनेगा। तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने इस खेल में एक और बड़ा और रहम दिलाना काम किया। उसने इस जिस्मानी दुनिया में भटकती हुई रूह की मदद के लिए इंसान को अक्ल अता की, और इस अक्ल को अता करने का वाहिद मकसद ये था कि मादे में उलझी हुई रूह को जगाया जा सके, ताकि अक्ल के जरिए रूह को ये एहसास दिलाया जाए कि ये जिस्मानी दुनिया और मादे की कैद उसका असल और मुकम्मल ठिकाना नहीं है। बिल्कुल। फलसफा ये है कि जब तक रूह इस मादे के साथ जुड़ी रहेगी और दुनियावी ख्वाहिशात में घिरी रहेगी, उसे लाजमी तौर पर तकलीफ, दुख और मायूसी का सामना करना पड़ेगा।
असल सुकून और लाजवाल आज़ादी तभी मिलेगी जब रूह अपने ऊपर लगी इस मादे की कैद से अक्ल के जरिए आज़ाद होकर अपनी असल रूहानी दुनिया में वापस जाएगी। इसी कहानी और नज़रिए के जरिए अल राज़ी ने उस अहम और सदियों पुराने सवाल का मंतिकी जवाब दिया जो हर दौर के फ़लसफ़ियों और मुफक्किरों को परेशान करता रहा है। कौन सा सवाल? कि दुनिया में दुख, तकलीफ और बुराई, जिसे ईविल कहा जाता है, आखिर क्यों वजूद रखती है। अल राज़ी वाज़े करते हैं कि ये दुख और तकलीफ़ें खुदा की तरफ से बेदर्दी से पैदा करदा नहीं है, बल्कि ये तो रूह का ठोस मादे के साथ जुड़ने और दुनियावी वजूद इख्तियार करने का लाजमी नतीजा है। यानी दुनिया खुद बुरी नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें मादा और उसकी खामियां शामिल हैं, इसलिए जिस्मानी तकलीफ लाजवाल और नागुज़ीर है। सही। और अल राज़ी के नज़दीक इस जिस्मानी क़ैद और तकलीफ से निजात का वाहिद रास्ता फ़लसफ़ा पढ़ना, सोच विचार करना और अपनी अक्ल को पूरी तरह जगाना है। जो इंसान अपनी अक्ल को समझ लेता है, वही दर हकीकत अपनी रूह को इस मादे की क़ैद से आज़ाद करवाने में कामयाब होता है। ये तसव्वुर वाकई बहुत गहरी सोचो विचार का नतीजा मालूम होता है। उन्होंने दुनिया की तकलीफ और रूह की आज़ादी के दरमियान एक मुकम्मल मंतकी रास्ता ढूंढने की कोशिश की है, जहां अक्ल एक चाबी का काम करती है, बिल्कुल चाबी की तरह। इस आसमानी और फ़लसफ़ियाना बहस के बाद अगर हम उनकी अमली अखलाकियात की तरफ आएं, तो वहां भी उन्होंने अक्ल ही को बुनियाद बनाया है। हाँ, उनकी अखलाकियात ना ही बहुत ज़्यादा दुनियावी ख्वाहिशात और जिस्मानी लज्जतों में डूबने पर मबनी थीं, और ना ही उस दौर के जोगियों की तरह मुकम्मल तौर पर दुनिया छोड़ देने और ख़ुद को तकलीफ देने पर करना चाहिए। अल राज़ी की मशहूर तसनीफ़ अल तिब अर रूहानी, जिसे रूहानी तिब या नफ्सियाती इलाज भी कहा जा सकता है, उसमें उन्होंने लज्जत और तकलीफ़ के नज़रिए को बहुत सादा लेकिन गहरे अमली अंदाज में बयान किया है। हाँ, उन्होंने वाज़े किया कि लज्जत का अपना कोई वजूद या मुस्तकिल हैसियत नहीं होती। उनके अपने अल्फाज में तकलीफ के ख़त्म होने के बाद वापस अपनी फितरी हालत में आना ही असल में लज्जत है। ये बहुत ही काबिल गौर नुक्ता है। इसे समझने के लिए उन्होंने एक बहुत आसान मिसाल दी है। वो धूप वाली मिसाल ना? हाँ, फर्ज किया जाए कि कोई शख्स शदीद गर्मी और धूप में खड़ा है और उस धूप की तपन से उसे शदीद तकलीफ हो रही है। फिर जब वो वहाँ से निकलकर एक दरख्त की छांव में आता है, तो उसे जो ठंडक और सुकून मिलता है, दरअसल वही लज्जत है। कितनी सीधी बात है। लज्जत का अपना कोई अलग वजूद नहीं, वो महज उस धूप की तकलीफ के दूर होने और जिस्म के अपनी असल फितरी हालत में वापस आने का नाम है। बिल्कुल मंतकी बात है। और इसी अकली और ठेठ मंतकी बुनियाद पर उन्होंने मौत के खौफ का भी बहुत खूबसूरत इलाज तजवीज़ किया है। आम तौर पर मौत का खौफ हर इंसान की नफ्सियात का सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन अल राज़ी ने इस मौत के डर को बिल्कुल गैर मंतकी करार दिया। इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर मौत से डरा क्यों जाए। अल राज़ी ने वजाहत की कि अगर इस बात पर यकीन रखा जाए कि मौत के बाद रूह के लिए एक बेहतर और आज़ाद ज़िंदगी मौजूद है, तो फिर तो खुशी मनानी चाहिए। हाँ, कि मौत इस जिस्मानी कैद से निकलकर एक बेहतर और आला मकाम पर ले जा रही है, वहाँ डर की कोई गुंजाइश नहीं। और दूसरी तरफ अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मौत के बाद कुछ भी नहीं बचता और मुकम्मल खात्मा है, तो जब जिस्म ही नहीं रहेगा और होश या एहसास ही बाकी नहीं होगा, तो फिर दर्द कैसा। सही बात है। जब दर्द महसूस करने की सलाहियत ही मौत के साथ ख़त्म हो जाएगी, तो उस अनदेखी हालत से डरना जहां दर्द का वजूद ही मुमकिन नहीं, सरासर बेमंतकी और खुद को धोखा देने वाली बात है। ये वाकई मौत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग और मंतकी जाविया है। अगर एहसास ही नहीं बचेगा तो डर कैसा। इस अंदाज से डर पर काबू पाना बिल्कुल एक अक़लियत पसंद फ़लसफ़ी का ही काम हो सकता है, जो जज्बात से गालिब ना आए। उन्होंने बिल्कुल इसी तरह बाकी ज़ाती खामियों को भी अक्ल के ज़रिए काबू करने की बात की। हसद, गुस्सा, लालच और परेशानी जैसे जहरीले जज्बात इंसान को अंदर से खाते हैं। उनके मुताबिक एक समझदार इंसान को सबसे पहले अपनी खामियों का इल्म होना चाहिए, और ये इल्म दोस्तों की नसीहत से या यहाँ तक के दुश्मनों की तनकीद पर ध्यान देकर भी हासिल किया जा सकता है। इन तमाम जज्बात और दुनियावी ख्वाहिशात को अक्ल के आगे हथियार डाल देने चाहिए ताकि रूह को सुकून मिले।
अलराजी का मकसद एक ऐसा मुतवाज़िन इंसान तैयार करना था जो अपनी अक्ल की ताकत से अपने नफ्सियाती और जिस्मानी अमल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सके। उनका दावा था कि जज्बात, गुस्सा, डर और दुनियावी ख्वाहिशात तो जानवरों में भी होते हैं, लेकिन इंसान को जो चीज़ बाकी मखलूकात से आला और बढ़तर बनाती है वो उसकी अक्ल है। अगर इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना छोड़ दे और खुद को अपनी ख्वाहिशात और जज्बात का ताबे कर दे तो वो अपनी असल फितरत और आला मकाम से गिर जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में मेयारवी इख्तियार करना और हर अमल में मंतिक को सामने रखना उनकी अमली इखलाकियात का सबसे बड़ा और अहम मरकज रहा है। तो आज के इस गहरे मुताले के आखिरी हिस्से में आकर अगर इस तमाम सफ़र का एक जामे खुलासा किया जाए तो मौसीकी के साज बजाने वाले फनकार से लेकर एक अजीम नाबीना मुआलिज और फ़लसफ़ी तक का ये सफ़र बेमिसाल और हैरत अंगीज मालूम होता है। वाकई एक ऐसा शख्स जिसने हादसात को अपने रास्ते की रुकावट बनने नहीं दिया, जिसने उस दौर की कायम शुदा रिवायतों से खुली बगावत की और अक्ल को सबसे आला मुकाम पर लाकर बिठा दिया। खुदा के अता करदा अक्ल को उसने न सिर्फ दूसरों की जिस्मानी बीमारियों की इलाज के लिए दिन रात इस्तेमाल किया, बल्कि रूह की परेशानियों, दुख और सबसे बढ़कर मौत के डर का इलाज ढूंढने के लिए भी बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। उनकी जिंदगी और उनके तहरीर करदा अकायद से ये सबक जरूर मिलता है कि मालूमात की तलाश, सच्चाई की जुस्तजू और खुद को बेहतर बनाने का अमल कभी खत्म नहीं होता। उनकी तहकीक का रास्ता जो शुरू में लूट बजाने से इब्तिदा पाकर कीमिया की भट्टी तक पहुंचा और फिर वहां से तिब और फलसफे की बुलंदियों तक गया, ये जाहिर करता है कि इंसानी ज़हानत और लगन किसी एक मैदान तक महदूद नहीं रहती। एक पुख्ता अक़लियत पसंदी और हर बात को दलील और तजर्बे की कसौटी पर परखने की आदत आज के इस तेजी से बदलते हुए और मालूमात से भरे दौर में भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी सदियों पहले अलराजी के दौर में रखती थी। इस तफसीली गुफ्तगू को समेटते हुए और अलराजी के अक्ल पर जोर देने के इस तसव्वुर को देखते हुए एक आखिरी फिक्र अंगेज सवाल मौजूद है जिस पर गौर किया जा सकता है। वो क्या? अलराजी का ये पुख्ता यकीन था कि इंसानी अक्ल भलाई और बुराई में फ़र्क करने के लिए मुकम्मल तौर पर काफ़ी है और इसके लिए किसी बैरूनी या रवायती रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आज का मुकम्मल माशरा सिर्फ़ और सिर्फ इनफरादी अक्ल पर छोड़ दिया जाए, जहाँ कोई मुश्तरका अखलाकी रिवायत या बंधे हुए कवानीन ना हों, तो क्या वो माशरा वाकई मुतवाज़िन और पुरसुकून रह पाएगा, या हर इंसान की अक्ल अपनी अलग सच्चाई घड़ लेगी जिससे एक नया इंतशार पैदा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी लगता है। आज के इस तफसीली जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।